Hi everyone. Hello students. I hope you all are good. So we come to this another interesting session of the series Important Vocabulary for IPMAT. And I hope you people have been following all the sessions, recording all the words, trying to figure out how actually should we be going about vocabulary, right? And if you incorporate these learnings in your daily functional vocabulary, I am sure you will not forget them. See, a word becomes defunct in your memory if you don't use it. So it's important that you learn to use these words. With repetition, you definitely become very comfortable with these words. And as you already know, we are sourcing these roots and clusters from Word Power Made Easy by Norman Lewis. So I'm trying my best to simplify things. I'm trying my best to weave them around some theme, right? Sometimes I pick up some important root words. Very often I pick up a theme and I build some clusters around it and add some root words to it so that you understand and appreciate these words really well. ठीक है? So I'm sure you're eager to know. Hi Minakshi, hello Akshita, hi Atish. आप लोग कैसे हैं? आपने मेरे previous sessions देखे हैं कि नहीं? If you haven't, please check them out. I am sure in every session class, I add a lot of value. I'm literally teaching. I'm literally trying my best. If you take it a little more seriously, मजा आ जाएगा. After these 10 sessions, you will be able to see perceptible improvement in your vocabulary. That's my word to you. Hello, Sarthak. Sarthak, Atish, they are my permanent cronies, है ना? They are my buddies now. तो चलिए आज हम क्या interesting करने वाले हैं is words related to feelings. यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए क्योंकि everything around English when you're speaking of a person, right? How are they feeling? How are you yourself feeling? What emotion is dominant? So obviously आपकी reading हो या फिर आपकी speaking हो या writing हो, उसमें ये words तो कहीं ना कहीं आएंगे ही और आपको इनकी जरूरत भी बहुत पड़ेगी. There's another additional relevance of doing this topic. That's the reason why I picked this up. The reason is tones. Tones is an important question type, though in IPM we have not been having tone-based questions a lot, but nonetheless, it's an important question type. And whenever we speak of tones, टोन्स में यही होता है कि ऑथर क्या फील कर रहा है, ऑथर का क्या एटीट्यूड है, क्या परसेप्शन है, और उसकी वजह से पूरी जो उसने स्टोरी पुट अप करी है, अपनी बात रखी है, उसका मूड कैसा बन रहा है, उसका माहौल कैसा बन रहा है, और वही चीज जो है दैट ट्रांसलेट्स और दैट गेट्स ओवर टू द रीडर. तो रीडर भी फील करता है. इफ यू read a sad piece of writing, you yourself may start feeling a little sad and gloomy and crestfallen. That is precisely the reason why I'm taking up feelings and will be taking up clusters. Hi, Vineet. Good to have you here. All right. तो चलिए start करते हैं. तो कुछ बहुत ही common feelings हैं जो इतनी easy और cute faces के through आपके सामने रखे गए हैं. And I'm sure you know all of these, right? So I think इसमें हमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है. अब हम भारी भारी IPMAT स्टाइल के वर्ड्स करने वाले हैं. तो डोंट यू वरी, नो फ्रेट. ऑलराइट, हम इसको इजी बनाएंगे आपके लिए. अब देखो ये बहुत ही ब्रॉड कुछ क्लस्टर्स हैं जो बहुत आसान हैं, और अगर इसमें बाय चांस ऐसा कोई भी वर्ड है जो आपको नहीं पता है, यू कैन आस्क मी. I think these are really easy. Either you are sad, you have these many words, I'll give you some heavier ones. Okay, when you're weepy, आप almost रो रहे हो, ठीक है. Happy, of course, you are probably very entertained, you are amused. हम कहते हैं ना amusement park, ठीक है. Entertainment होता है आपका, you're delighted, ठीक है. Hurt, maybe you're feeling betrayed or you're being let down. आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको लेट डाउन कर दिया, यू फीलिंग सो बिट्रेड. धोखा दे दिया आपको, ठीक है. सो बिट्रेयल, या यू हर्ट, यू वुंडेड, समटाइम्स इवन इम्पेयर्ड, अब्यूज्ड. प्रॉबेबली अब्यूज जरूरी नहीं है फिजिकली हो, कैन बी एन इमोशनल अब्यूज एज वेल. यू फीलिंग रिजेक्टेड. रिजेक्टेड के लिए बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. स्पर्न्ड,
है ना? When somebody spurns you, they reject you. All right. Confident, you're feeling assured, you're feeling very certain of yourself, you're encouraged, you're relaxed. Energized, you're motivated. Invigorated, nice word, vigor से बना. Vigor का मतलब ही होता है strength. You're invigorated, renewed, vibrant, full of energy and life. So these were very basic feelings and emotions. We now come to some interesting clusters one by one. But उससे पहले थोड़ी सी etymology, थोड़ी सी root words तो बनते ही हैं. Tender is when you're feeling a little touchy and too sentimental. All right, Vineet? Okay. If you say someone, yeah, I might look a little rough and tough and very robust, but I have a tender heart or I'm a little tender there. That means you're trying to say that you're a sentimental person and a little more susceptible to getting hurt easily. चलो तुम्हारे लिए ये एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्या तुम डिफरेंस बता सकते हो इन वर्ड्स के बीच में? एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, टेलीपैथी, एंटीपैथी. और फिर हम इन सारे वर्ड्स का रूट करने वाले हैं. बताइए बताइए. एनी आइडिया टू एनीबॉडी? थिंक. I'm sure there might be a word or two जो आप नहीं जानते हैं, but still, by and large, broadly, you must be able to at least tell me the difference between sympathy and empathy. बनता है इतना तो? मीनाक्षी, wonderful, spot on. Apathy का मतलब होता है indifference. और indifference डिफरेंस का ऑपोजिट नहीं होता. बच्चों को कभी कभी लगता है कि इनडिफरेंस क्या है? डिफरेंस का ऑपोजिट है. अरे नहीं, इनडिफरेंस मींस लैक ऑफ कंसर्न, मतलब लैक ऑफ फीलिंग्स. ये सारे ही वर्ड्स बनते हैं फ्रॉम द रूट पैथस, जिसका मतलब होता है फीलिंग्स. इसका कुछ एडिशनल मतलब भी होता है, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू राइट नाउ. वो मैं आपको बताऊंगी. हैव पेशेंस. वेरी गुड सार्थक, दैट्स राइट. अक्षिता, absolutely right. Atish, I am loving the participation. Good. Some nice students have joined us today. Wonderful. So indifference का मतलब होता है कोई भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि पैथी, पैथोस तो फीलिंग हुआ और ए मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग, मतलब ना ही अच्छी फीलिंग ना ही बुरी फीलिंग. ठीक है. कुछ आप लोग आते हो यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड करते हो, यू डोंट रियली नो ईच अदर, तो टुमारो इफ अ पर्सन इज मिसिंग यू माइट नॉट इवन नोटिस, है ना? तो मेनू की फर्क पैंदा है, जिसको आना है जिसको नहीं आना नहीं है, राइट? सो वी आर इनडिफरेंट टू पीपल. समटाइम्स वी आर इनडिफरेंट टू आवर ओन रिलेटिव्स, राइट? तो इनडिफरेंस मतलब लैक ऑफ फीलिंग. सिंपैथी, एम्पैथी में फर्क बता दो. चलो इसको एड करने के लिए तुमको एक सिंपल सी इमेज दिखाती हूँ. ये इमेज देखो. Look at this and tell me, can you understand the difference between sympathy and empathy? Wonderful, Meenakshi. Well tried. Drishti. Nice, Drishti. Good going. Chalo. तो sympathy is having a sense of pity for someone. किसी पे आपको दया आ गई, किसी के लिए आपको बहुत ही बुरा लग रहा है किसी को देखकर. ठीक है ना? सार्थक अग्रीड. पैथोस का मतलब डिजीज भी होता है, वो मैं आपको बताने वाली हूं इन अ व्हाइल. बट सिंपैथी, आपको पिटी फील कर रहे हो आप किसी पे, आपको दया आ गई, दैट इज सिंपैथी. एम्पैथी इज यू फील देयर पेन. You put yourself in the shoes of others and you try to feel what they are going through. So obviously as humans, या सिंपैथी तो हम कई बार एग्जिबिट करते ही हैं, बट आई बिलीव एम्पैथी इज समथिंग दैट वी मस्ट हैव. हर रिलेशनशिप में, हर इक्वेशन में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है. ठीक है ना? I personally don't want to be called a bechara, bechari anytime, but I certainly expect empathy from my colleagues, from my heads, okay, from my relatives, right? अब इंटरेस्टिंग चीज है, we go back to it, कि यार ये टेलीपैथी क्या होता है. इसकी मैं आपको एटिमोलॉजी भी बताऊंगी, बट सबसे पहले ये तो समझो कि टेलीपैथी क्या होता है. ऑलराइट, टेलीपैथी is
I'll give you some examples. हाँ, वो ना हिंदी फिल्मों में होती है ना कि वो माँ, हिंदी फिल्मों की माँ, उसको सब समझ आ जाता है, लड़का अपना बेटा कोई मुसीबत में है, he's not showing any signs, right? There are no signs, there's no communication, but without that she understands everything, how perceptive she is. कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो उसका दिया सडनली बुझ जाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि अरे मेरे बच्चे मुश्किल में है, मुसीबत में है, हो जाता है ना। या फिर कोई लेडी है, उसका थोड़ा सा सिंदूर मिट गया तो वो समझ जाती है कि आज तो मेरे पति को कुछ होने ही वाला है। तो ये तो इल ओमेंस टाइप की चीजें हैं, लेकिन एसेंशियली द आइडिया हियर इज द मोमेंट वी से अबाउट दीज थिंग्स, it's like without any communication, when you understand things, when you understand the feelings of others, you are able to sometimes even exchange emotions and feelings. That is telepathy. I'll give you another very nice example. ये कभी कभी consciously भी होता है, often subconsciously हो जाता है। रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ मेरी फ्रेंड का, कि देयर वाज अ फ्रेंड, राइट, एक्स कोलीग, 4 साल से 3 साल से कम्युनिकेशन नहीं था बिल्कुल भी, एंड वन फाइन डे आई गेट अप एंड आई एम थिंकिंग ऑफ हर समहाउ, उन्हीं का थॉट बार बार आ रहा है, एंड आई जस्ट थिंक यार इनको मैंने कब से कॉल नहीं किया, मैं मैम को कॉल जरूर लगाऊं, एंड दैट इज व्हेन आई गेट अ कॉल फ्रॉम हर। डू यू थिंक दिस कैन बी जस्ट अ कोइंसिडेंस? एंड देन शी सेज, यू नो सना, मैं सुबह से तुमको याद कर रही हूँ, एंड आई वाज लाइक नॉन प्लस, एंड ट्रस्ट मी दिस हैपेंड विद मी thrice at least in life. तो ये कहीं ना कहीं कुछ exchanges होते हैं जो थोड़े से beyond the explanations of science हो जाते हैं, and it's like without communication, when you are able to perceive or even read somebody's mind and feelings and emotions, that is what is this. Is this much clear? Yes, Akshita, आप mind reading कह सकते हैं, आप दूसरों की इमोशंस को फील कर सकते हैं इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, यस। तो अब हम बात करते हैं टेलीपैथी की एटिमोलॉजी की, कि यहां पे आपको दिख रहा है टेली, टेली मतलब डिस्टेंस, एंटीपैथी, एंटी मतलब व्हाट इज एंटी? एंटी मतलब, पहले तो तुम एंटीपैथी का मतलब बताओ। What is the meaning of antipathy? What could be the meaning of antipathy? बताइए। Anti मतलब against. Anti as a root means against. तो जब तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध फीलिंग्स होती हैं, किसी के खिलाफ फीलिंग होती है, उसको हम कहते हैं एंटीपैथी। देयर इज दिस एनिमोसिटी, बिटरनेस, होस्टिलिटी। हो सकता है आपके बैच में कोई बंदा हो, बंदी हो, जिससे आपका 36 का आंकड़ा चलता है, राइट? या तो आपका कंपटीशन चलता है बट नॉट अ हेल्दी वन, या फिर कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कोई मौका नहीं छोड़ते एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए। एंटीपैथी है आपके बीच में, हेट्रेड, बिल्कुल बिल्कुल, होस्टिलिटी, आप होस्टाइल हो, ठीक है ना? सो I think let us sum it up. Apathy, कोई भी फीलिंग नहीं है, इंडिफरेंस है, लैक ऑफ कंसर्न है। सिंपैथी, पिटी है, तरस आ रहा है किसी पे, दया आ रही है। एम्पैथी, आप किसी इंसान का दुख, दर्द, पीड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो, उसकी सिचुएशन में अपने आप को डाल के सोच रहे हो कि वो ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। एंटीपैथी, you are at cross with the person, at loggerheads with the person, बिल्कुल नहीं बनती हमारी, ठीक है? And telepathy, without any communication, without any signs, you're able to read the mind of person, or even you try to, or you're able to feel their emotions. Is this much clear? Yes, Dikshita? या ग्रजेस, यस, आप कह सकते हो बिल्कुल, बिकॉज जब आप में एंटीपैथी होती है तो यू होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट द पर्सन, यू आर नॉट वेरी मैग्नानिमस, यू डोंट लेट इट गो। सो आई बिलीव दीज वर्ड्स आर सॉर्टेड। एवर्जन, रिपग्नेंस, रिवल्शन। चलो तुम्हें कुछ सिनोनिम्स बता दूं एंटीपैथी के, वैसे वो लाइंड अप हैं ही। तो एंटीपैथी के कुछ
सिनोनिम्स हो जाएंगे रिवल्शन, रिपग्नेंस, है ना, इल विल, acrimony, animosity. यार ट्रस्ट मी आई कैन गो ऑन, बोर्ड भर जाएगा। वोकैब्युलरी तो मैं तो महीनों पढ़ा सकती हूँ। तो वी आर डन विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इस रूट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस रूट पैथोस अबाउट? तो पैथोस का मतलब होता है फीलिंग, और इंटरेस्टिंगली एक और मतलब होता है डिजीज। तो यहां तक जो वर्ड्स हैं वो फीलिंग से रिलेटेड है, और नीचे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो डिजीज रिलेटेड वर्ड्स, राइट? ओके, सो मुझे बताइए, एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी, एंटीपैथी, ये तो हो ही चुका, वी ऑलरेडी नो दैट, बिकॉज इन सब में आपको पैथोस दिख रहा है, उसी का फॉर्म हो जाता है पैथी। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी रूट से एक इंडिपेंडेंट वर्ड भी बन जाता है, विच इज पैथोस। All right, so you even are able to figure out that there is this interesting word जो सेम है रूट से, बट इसका मतलब क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ इवोकिंग सैडनेस और पिटी। फॉर एग्जाम्पल आप बोले कि द पैथस ऑफ द मूवी लेफ्ट मी टीयरी आइड। आप में से कौन लोग हैं यार जो फिल्में देख के रो देते हैं? मैं रो देती हूँ। आई एम सच एन इमोशनल फूल। व्हाई डोंट आई अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल, आई नो दैट दिस इज अ मूवी एट द एंड ऑफ द डे, बट समवेयर और द अदर आई गेट अ little lachrymose and too emotional. I get so involved in a movie. So it's the pathos of the movie which makes me so sad. All right, so ये pathos हो गया। Pathetic, anything that makes you feel really bad, disgusted is pathetic, है ना? ये आपको जो फीलिंग दे जाए कि ये क्या था कचरा यार, what is this, what a pathetic novel was that यार, I invested 20 days and it was pathetic। मतलब कोई चीज जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, that makes you feel a little bad or disgusted, that is pathetic। मीनाक्षी, you can relate, हाँ, we are so similar here। all right, so coming to telepathy, we have already discussed that, तो ये तो पैथी से रिलेटेड वर्ड्स हो गए। अब हम इस पे आते हैं डिजीज वाली बात पे। पैथोलॉजी, लॉजी we already know, लॉजी is the study of something or the science of something, तो पैथोलॉजी is the study of diseases, है ना? Absolutely। अब ये पैथोलॉजिस्ट, वो जो आप पैथोलॉजी लैब जाते हो ना, भाई आपको बुखार चढ़ रहा है शिवरिंग के साथ में, अब ये डॉक्टर को समझ में तो आ जाएगा सिम्टम्स देके, बट ही वोंट बी वेरी श्योर। हो भी सकता है आपको मलेरिया हो भी सकता है आपको डेंगी हो भी सकता है आपको कुछ और ailment हो। So the doctor will send you to a pathologist. The pathologist will figure out what exactly is your disease, what is your ailment। आपके वो ब्लड सैंपल्स लेंगे या कुछ वाइटल सैंपल्स लेके उनको स्टडी करते हैं, है ना? ओके, नाउ इंटरेस्टिंगली पैथोजन पे बात करते हैं। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंपल। ओके, हाय दिव्यांश। ऑलराइट, बड़े दिनों में आप शायद पहले भी आए थे, आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट लाइक स्टूडेंट्स कम एंड गो। कुछ ही बच्चे हैं जो बने रहते हैं थ्रू आउट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह। साइकोपैथ, वी ऑल नो अबाउट साइकोपैथ। किसी से लड़ना होता है या किसी को अब्यूज करना होता है तो हम बोलते हैं ना साइको हो तुम, साइको बोलते ही होगे, कभी ना कभी बोला होगा। तो साइकोपैथ कौन होते हैं? साइक रेफर्स टू माइंड, है ना, एंड पैथ refers to disease, we already know। So a person with a diseased mind is a psychopath। Now these people
वेरी इंटरेस्टिंगली समटाइम्स माइट इवन अपीयर नॉर्मल, बट उनमें कुछ ना कुछ बिहेवियर में आपको एनॉमली दिखेगी जरूर, एबरेशन दिखेगा जरूर। ये जितने आपकी जो सीरियल किलर्स होते हैं ना, कितनी मूवीज बनी है सीरियल किलर्स पे, राइट? सो दीज आर ऑल साइकोपैथ्स। कौन कौन सी मूवीज बनी है साइकोपैथ्स पे रिसेंटली अपने बॉलीवुड में? मैंने वो एक मूवी देखी थी, इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। वो कौन सी थी? Raghav and Raman, something like that. It was very disturbing. Okay, so हाँ, SRK from डर मूवी तो तुम बिल्कुल अनुकल पापा के जमाने में पहुंच गए तुम. Absolutely, but a good example. Shah Rukh Khan in the movie Dar was a psychopath. All right, he was an obsessed lover. एकदम ऑब्सेस्ड लवर। और वो कुछ लवर्स होते हैं जिनको ना इफ दे आर रिजेक्टेड तो वो बन जाते हैं, उनको बोलते हैं जिल्टेड लवर्स, है ना? दे आर जिल्टेड, तो फिर वो एकदम आशिकी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, असुर सीरीज इसी पे बनी थी पार्थ, इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, सो वी डन विद दिस। आई थिंक वो शैडोज, अभिषेक बच्चन वाली ब्रीद इन द शैडोज, वो भी साइकोपैथ पे थी। पैथोलॉजी तो हो गया, पैथोलॉजिकल इंटरेस्टिंग है, इट इज रिलेटेड टू डिजीज। हाँ बहुत सारी है। एक विलन रिटर्न्स, मर्दानी, बिल्कुल सही। अब क्या हम आगे बढ़े? ओके हाँ जी, एक था विलन, राइट राइट राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम, मतलब फिल्मों की बात हो जाए ना तो मजा आ जाता है तुम लोग को, है ना? चलो इंटरेस्टिंग। तो पैथोलॉजिकल जब हम कहते हैं, इट्स समवन हु इज ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड, या फिर वो ऐसा आपको कोई बिहेवियर लग रहा है जो वो डिजीज्ड है। इट इज रिलेटेड टू डिजीजेस ओनली। ओके, इट्स अ पैथोलॉजिकल एलिमेंट, मतलब कि बीमारी है। आप किसी को पैथोलॉजिकल लायर भी बोल सकते हो। वर्ड पावर में डीजी में ये एक एक्सप्रेशन भी आया है, क्या? पैथोलॉजिकल लायर। क्यों लायर को क्यों पैथोलॉजिकल बोल रहे हैं? एक तो होता है कभी कभी हम झूठ बोलते, सब बोलते हैं, लेट्स एडमिट, अपने आप को बचाने के लिए, सिचुएशन ऐसी है। बट कुछ लोग होते हैं ना जिनको बीमारी होती है झूठ बोलने की, बिन बात के हर बात पे वो झूठ ही बोलते रहते हैं। ठीक है, सो एनीवे आगे बढ़ते हैं। पता है मेरा टाइम बहुत आगे बढ़ गया है, आई हैव सो मच टू डिस्कस विद यू, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। ये एक एक्सरसाइज आप करो फटाफट। क्या आप रिकॉल कर सकते हो वर्ड्स को? मुझे सच बताऊं तो बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों से डिस्कशन करने में, बट आई वांट यू टू टेक दिस एक्सरसाइज। या लेट्स डू इट क्विकली, लेट्स डू इट टुगेदर। स्टडी ऑफ डिजीज क्या होगा? पैथोलॉजी। वेरी नाइस, वेरी नाइस अनुकल, दृष्टि, मीनाक्षी, वंडरफुल पार्टिसिपेशन। फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी और डिसलाइक क्या होगा? एंटीपैथी। देयर वी गो, वंडरफुल। evoking sorrow or pity। pathos, क्या बात है दृष्टि, very nice, and the rest। I can't take all your names every time, that won't be possible। skillful at thought transference without sensory communication। कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है बट फीलिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं, सामने वाले की फीलिंग इमोशन आप समझ पा रहे हो। ठीक है, क्या है? टेलीपैथी। देयर वी गो, नाइस क्लास। identification with the feelings of another, empathy, wonderful। having hostility and bitterness for someone, what would that be? Of course, antipathy this time। can you see that? Antipathy। So this was a wonderful exercise and we are already on the brink, but I really had something more for you, would like to show something to you। So I had designed these clusters for you, they are very very interesting। ये देखिए, जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, when you're fuming with anger, these are the words: rage,
outrage, wrath. Outrage mostly हम ये तब कहते हैं when some injustice has been done and then there's this public outrage against it, है ना? You are vocally or loudly expressing your anger, okay, and you're demanding justice. Mostly इस context में use होता है. Fury, annoyance, indignation is a nice word. ठीक है? Done with this? You should be recording these words. हाँ, ये सेशन तो तुम खुद ढूंढो. पैथस शुरू में दिया था, ये क्लस्टर्स लेकिन सार्थक मैंने खुद बनाए हैं. ये क्लस्टर्स नहीं है. हैप्पीनेस, बंदी को देखो मजा आ गया जिंदगी का, खुश हो गई एकदम. ठीक है, कितनी खुश लग रही है. ये देखो हैप्पीनेस के लिए क्या वर्ड्स हैं, ब्यूटिफुल वर्ड्स. जो चीजें तुम इजीली याद रख सकते हो वो ये है. ऑन क्लाउड 9, इन सेवेंथ हेवन, ओवर द मून. आप इतने खुश हो, कैसा लग रहा है कि आपके वो है ना आजकल पांव जमीन पर नहीं रुकते मेरे. दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग. मैं तो हवा में उड़ रही हूँ. दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल, राइट? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम ये भी कहते हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. So excited, so happy. Bliss is a common word. Glee, gleeful. Glee is happiness. Gleeful is you're very happy. Gaiety बना from the word gay. इसका noun form है. Rapture, euphoria. मेरे दूसरे सेशन में मैं euphoria के बारे में डिटेल में बात करूंगी about its etymology. Absolutely. Blithe, when you're like feeling really carefree, you are ekdam light in your head, you're feeling so nice and excited. Ecstatic, when you're ecstatic. Elated, wonderful words class, इनको याद जरूर रखो, ये बहुत important है. So instead of saying again and again I'm very happy, why don't you use these words? आपका communication कितना प्यारा हो जाएगा, and they definitely help you in your exams. अब इनको देखो भाई साहब को, कैसे मोटे मोटे आंसू रो रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, आज मैं ऊपर आसमान नीचे. विनीत बिल्कुल सही. दैट्स बीइंग इलेटेड. नाउ लुक एट हिम. बहुत मोटे मोटे आंसू, है ना? बहुत ही सैड. अब इसके लिए बहुत कुछ प्यारे वर्ड्स है. देखो, डोलफुल एंड डोलरस कम फ्रॉम द रूट डोल, विच मीन्स, ये हिंदी वाला डोल नहीं है, ये दिस मीन्स पेन. सो जब तुम्हारे ना दिल में दर्द होता है ना, वो एक मूवी में बोलता है ना वो अपना विकी कौशल, ये दुख का है खत्म नहीं होता, है ना? मसान में बोलता है दुख का है खत्म नहीं होता. तो दिल में दर्द भरा जा रहा है, यू सो सैड, एंड दैट इज व्हाई यू फीलिंग डोलफुल और डोलरस. ऑफ कोर्स विनीत, नोट्स बनाना है आपको, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखो, एक है मेलनकलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड. लुग्यूब्रियस बहुत इंपॉर्टेंट. मोर्नफुल हो, आप मातम मना रहे हो. मोरोज इज ऑल्सो सैड. लैमेंटिंग, किसी चीज का दुख मना रहे हो. क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट क्या होती है? पीक. अगर तुम पीक से नीचे गिरोगे, अगर तुम अर्श से फर्श पे गिरोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, दुख होगा ना तुम्हें. बस you'll feel distressed, you will feel depressed, you will be dejected. gloomy सबको पता ही होगा. ये नोट्स, मेरी सारे सेशंस के नोट्स बना लो, तुम्हें काम आएंगे, ठीक है? ये काम तुम खुद करते, मैंने तुम्हारे लिए पका पकाया माल तुमको दे दिया. इरिटेशन, इनको देखो भाई साहब को, क्या हालत हो रही है इनकी, है? मतलब खुद के बाल नोच लेंगे, ये इतने ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं. नाइस वर्ड्स. वेक्सेशन, शैग्रिन, एग्जैस्परेशन. वंडरफुल. सो नेक्स्ट टाइम you're feeling irritated, you'll say I'm so vexed. ठीक है? Peak is also this, but peak को अलग वे में भी लिया जाता है. To peak, this book piqued my interest in vocabulary. तो stimulation के सेंस में भी peak को लिया जाता है ना? All right. Agitated, frustrated, सबको पता है. And finally, hate.
भाई stop hate and spread love. तो hate, spite. When you loathe something, you are hating that thing. Rancor, antipathy आपका प्यारा वर्ड आ गया. And of course detest कर रहे हो आप उसे, डिप्लोर कर रहे हो, डिस्पाइस कर रहे हो, बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा सा एक ऐसा चीज क्लस्टर बनाई है जो बैलेंस है जितना तुम कर सकते हो. ठीक है क्लास, सो वी विल नाउ रैप इट अप and this is the last quiz time. Let's do this. ये तो बन ही जाएगा आपसे. Identify the odd word out. एग्जैक्टली विनायक, ये बहुत अच्छी तुमने बात बोली, मैं बोलने वाली थी. आप डोल बोला ना मैंने, रूट पेन, तो आप देखो ना वो डोलो 500 और डोलो 650, ये पेन किलर्स है ना. दे हैव डिराइव्ड देयर नेम फ्रॉम द रूट डोल. ठीक है, और डोलो. नाइस, आई लाइक द पार्टिसिपेशन. First, odd क्या है? Chagrin is also, you know, your irritation. Much to my chagrin, I couldn't get two IIMs. ठीक है, तो ये chagrin है. Peak is also chagrin, but gloomy is sad. तो थोड़ा सा अलग हो गया. So that will be the answer. Very well done, Anukalp, Minakshi, Drishti, well done. Melancholy, vexation, lamenting. अब यहाँ पे बताओ. यहाँ पे देखो, ये भी sad है ना, ये भी सैड, बट ये फ्रस्ट्रेटेड, तो ये ऑड हो जाएगा. ये तो तुम पकड़ ही लोगे, क्लियर है. स्पाइट इज हेट्रेड. Antipathy is also that. Okay, you are against someone, you don't like someone, you hate that person. गेटी क्या है? गे होना, मतलब ये वो वाला गे नहीं है भाई, ये एलजीबीटी वाला नहीं है भाई, ये वो क्या है, हैप्पी वाला गे है. गेटी. outrage, mirth, glee. क्या होगा? mirth is happiness, glee is also happiness, outrage is anger. So the odd one out is A. So that was all for today. I can clearly see that you thoroughly enjoyed this session. Be with me every time. All right. And that's all. Keep revising. Bye bye. Take care.